Okay, so let us continue our session. So we were doing the interpersonal skill. जो अपने पढ़ रहे थे about interpersonal skill. अच्छा, Amrita, you were not there in the previous class, so I'll just tell you what is interpersonal skill. When we say interpersonal skill, we know that a manager needs to spend a substantial amount of time in interacting with others. একটা ম্যানেজারকে তো অনেকটা টাইম অন্যদের সঙ্গে ইন্টারাকশনের জন্য বের করতে হয়। এই জন্যে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলসটা খুব দরকার আছে। দেখো, পার্সোনাল স্কিল মানে হলো আমার নিজস্ব স্কিল, বাট ওয়েন ইউ আর কানেক্টিং উইথ পিপল, আমি যখন অন্যের সঙ্গে কথা বলছি, অন্যের সঙ্গে কমিউনিকেশন করছি। এবার দেখো, আমরা যদি ম্যানেজমেন্টটা করি, ম্যানেজমেন্টে ইট ইজ নট পসিবল দ্যাট আই উইল কমিউনিকেট অ্যান্ড আই উইল ডু অল দ্য থিংস বাই মাই ওন। এটা তো পসিবল হবে না। ম্যানেজমেন্ট মানেই হচ্ছে ইউ আর ইন্টারাক্টিং অ্যান্ড ইউ আর কোঅর্ডিনেটিং উইথ আ লটস অফ পিপল টু গেট ইউর থিংস ডান. Now, definitely, it means that a manager needs to have a good interpersonal skill. But here, I am not talking about only managers. Everyone must have a good interpersonal skill, because every people, we live in a society, and every time we are interacting with different type of people in the different types of environment. It is not that we are only interacting in one type of environment. A lot of type of environment is there. কখনো তুমি মন্দিরে যাচ্ছ, কখনো তুমি একটা চার্চে যাচ্ছ, কখনো একটা অফিসে যাচ্ছ. সামটাইম ইউ মাইট হ্যাভ টু ভিজিট আ ব্যাঙ্ক, right? Sometime you might have to visit a bazaar. So every time the environment is different and you are interacting with different type of people. अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करूँ, एक कंपनी की ही बात करूँ, समटाइम यू माइट हैव टू गो टू अ फैक्ट्री, अनदर टाइम एट वेयर हाउस, अनदर टाइम एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, एट द अदर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर विजिटिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट, कभी आप CMD के चैम्बर में जा रहे हो. तो हर एक सिचुएशन देखो बिल्कुल अलग अलग है. जब आप फैक्ट्री में बिल्कुल लोअर लेवल वर्कर्स के संग कोऑर्डिनेट करोगे, ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं जब HR मैनेजर थी टाटा मोटर्स में, तो मुझे कम्युनिकेशन इतने सारे लोगों के संग करना होता था. विजिट करना है, ऑडिट करना है, कभी कभी घूमना है, एम्प्लॉयज से मिलना है पर्सनली. तो एट डिफरेंट टाइम एंड एट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा. अब CMD के संग जैसे बात करेंगे, वैसे ही मैं अपने पीयर के संग तो बात नहीं करूँगी. मेरा जो कलीग है उसके संग मेरा कम्युनिकेशन अलग तरीके का होगा. ऑन दी अदर हैंड मेरे सबऑर्डिनेट के संग मेरा कम्युनिकेशन पैटर्न वुड बी डिफरेंट. सो as I said earlier, कि everyone, not only managers, why we are referring to managers, because it is normally about managerial effectiveness we are discussing. कि as a, you all are doing your management studies, and that is why we refer most of the time as management or manager. But we all know that everyone need this interpersonal skill very much. If we does not have this interpersonal skills, we cannot survive properly. अपने आप को ना सर्वाइव करने के सिचुएशन में भी देखो, अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर्वाइव करना. यू विल नॉट बी एबल टू डू अ गुड जॉब, यू विल नॉट बी इन अ गुड जॉब और अ प्रोफेशन. आपके घर में भी परेशानी आएगी, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो ये इंटरपर्सनल स्किल जो है ना, वो बेसिक है आपका कम्युनिकेशन का. आप किस तरीके से अपने भावना दूसरों को पहुंचाते हो, दूसरों की भावनाओं को समझते हो, दूसरे के परसेप्शन, फीलिंग, एवरीवन. Then only I can interact effectively at different time and at different environment, or we can say with different type of people. This is what interpersonal skill is, right? Now there are different types of interpersonal skill that a manager must have. वो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि different types of interpersonal skills क्या है. Now few steps that we can study or that are helpful for managers to develop interpersonal skill. अब एक मैनेजर्स अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे डेवलप करेगा? देर आर फ्यू पॉइंट दैट वी कैन स्टडी. फर्स्ट इज डेवलपिंग असर्टिवनेस. असर्टिवनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक मैनेजर अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप अगर करना चाहता है उसमें, या कोई भी, मैं सिर्फ मैनेजर की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये इंटरपर्सनल स्किल सबको के लिए ज़रूरी है, आपको भी, मुझे भी, सभी को. इसमें पहला पॉइंट अपने क्या देखेंगे? हाउ टू डेवलप असर्टिवनेस. डेवलपिंग असर्टिवनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग योर इंटरपर्सनल स्किल. असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है? देखो, आप गलत हो, अच्छी बात है, आप गलत हो, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सही बता रही हूँ. तुम सही हो कि गलत हो अलग बात है. तुम मुझे अगर गलत बताओगी तो मैं क्या करूँगी? मैं अग्रेसिव बिना हुए, बिना झगड़ा झमेले के मैं यही बोलूँगी कि आप जो हो सो हो, पर मैं जो अपना पॉइंट दे रही हूँ दिस इज़ वेरी क्लियर एंड दिस इज करेक्ट. मेरा जो बात है वो सही और सच है. वो बहुत प्यार से समझाना है, बिना झगड़ा किए.
यही है एजर्टिवनेस। एजर्टिवनेस जो श्री कृष्ण जी का कमाल था ना, ये अगेन आ गया स्पिरिचुअलिटी में। तू बोले कि मैम घूम फिर के गीता पूरा पढ़ा देगी, तो वो एजर्टिवनेस का जो स्किल हम लोग को वहीं से देखने मिलता है सबसे ज्यादा, है ना। एजर्टिवनेस इज द एबिलिटी टू स्टेट वन पॉइंट क्लियरली विदाउट बीइंग अग्रेसिव। अपने पॉइंट को बहुत क्लियरली आप समझा पा रहे हो अग्रेसिव बिना हुए। ये मेरे अंदर ये बिल्कुल ये कैरेक्टर नहीं है, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, मैं इसको एडमिट कर रही हूँ, मेरी वीकनेस भी नहीं है। नहीं, मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत अच्छे से है, ठीक है। और रैदर वो तो अब वो गलत भी होंगे तो वो बहुत एजर्टिवली बताएंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड बाय मैनेजर्स एज इट हेल्प्स देम टू डील विद belligerent people and uncomfortable situation more effectively. Assertiveness is a quality which helps in solving problem by ensuring that all the parties involved are able to find a reasonably satisfactory solution. To develop assertiveness, it is important for manager to treat others in the organization as they would like themselves to be treated. तो assertiveness के लिए क्या करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई को अपना पॉइंट रखने का राइट होना चाहिए, कि हर कोई जो है वो अपने पॉइंट्स को अच्छे से रख सके। कोई गलत है कोई सही है, बट यहाँ पर सबके पॉइंट सुने जाए, सबकी बातों को सुना जाए, तो एजर्टिवनेस तभी आएगी। एन एजर्टिव पर्सन कैसा होगा? एक एजर्टिव पर्सन देखो, एन एजर्टिव पर्सन विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। एजर्टिवनेस कैसे आएगी? एन एजर्टिव पर्सन विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। ही विल टेक ऑल द ऑप्शंस। कोई डिसीजन लेने के पहले सारे ऑप्शंस को देखेगा। आस्क फॉर मोर टाइम टू ड्वेल ऑन सिचुएशन ऑफ रिक्वायर्ड। असर्टिवनेस में क्या हमें सिखाया जाता है कि विल आस्क फॉर मोर टाइम। अगर एक सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं या सिचुएशन में हमें लग रहा है कि हमें और टाइम की ज़रूरत है, तो और टाइम हम देंगे। थर्ड पॉइंट, टॉक इन अ स्टेडी वॉइस, मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एंड बी ऑनेस्ट एंड ओपन। ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ, तो इसको देखकर ही समझ जाओ कि टॉक इन अ स्टेडी वॉइस। जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस का जो पिच है ना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, अपने को आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेंटेन करना है। एंड बी ऑनेस्ट एंड ओपन, ठीक है। से नो कामली विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज और एक्सप्लेनेशन। जब आपको पता है आप सही हो, आप नो बोलो। नो बोलना सीखना होगा कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। से नो कामली, बहुत शांति से नहीं बोलना सीखना है। विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेज और एक्सप्लेनेशन। देखो, जब आप सही हो, आप अपने डिसीजन पे सही हो, अपने पॉइंट पे सही हो, उस टाइम में आपको नो बोलना सीखना आना चाहिए, विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेज और एक्सप्लेनेशन। कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। नॉट बीट अराउंड द बुश ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन एंड स्टिक टू हिज और हर पॉइंट्स, ठीक है। टेक चैलेंजिंग सिचुएशन इन द राइट स्पिरिट। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आया तो उसको अच्छे से खुशी खुशी लीजिए। थिंक पॉजिटिवली एंड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड। पॉजिटिवली सोचना है एंड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो चीज़ चाहिए उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। आज इतना ही पॉइंट रहने देते हैं, ठीक है। काफ़ी देर से